Hello. Yes, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, sorry for the delay. There is a network issue on this PC. Okay, so till now, what you have studied? Okay, so we are discussing with the topic of interference and Young's double slit experiment we discussed. Last class, ma'am had discussed the intensity distribution in the fringe pattern of कैसे intensity distribute होता है, कितना होता है, and we discussed all those things. ठीक है? So till now जो पढ़ा है सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. So is it clear to all? Okay. So we'll start with the next topic. ये तो almost सारे बच्चों ने पढ़ लिया था. So again we'll start with the topic of this is Fresnel's biprism. The next topic. Okay. The next topic will start with the Fresnel's biprism. Okay, so what do you mean by biprism? Bolo. This is a Fresnel's biprism. So to produce interference by division of wavefront, we are using this Fresnel's biprism. So what is this biprism? And before that, what is this prism? Prism क्या होता है? What do you mean by prism? Prism में क्या होता है? बोलो. What is prism? Prism में आपने क्या क्या पढ़ा है? बहुत कुछ पढ़ा है prism में. That is, you know what is the angle of deviation? Splitting of white light, deviation. Yes. So we are discussing dispersion with prism में आपने बहुत सारे कुछ पढ़ा है. ठीक है? It is used to, prism is a device which is used to refract light, diffract light, disperse भी, light का dispersion भी दिखाता है. ठीक है? So what is angle of deviation? ये तो almost, ये तो हमने सबने पढ़ लिया था. I think जो नए बच्चे आए, आप सबने भी शायद पढ़ा होगा. कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, शायद they don't know this topic. बाकी हमने सारी चीज पढ़ा है इसको. We are again repeating the same thing. This is also one of the important topic of this interference phenomena. Okay, so what do you mean by prism? Prism में क्या होता है? Prism is a device which is used to reflect light, diffract light, and also disperse it into different colors. Okay, so prism में what is angle of deviation? बोलो. What is angle of deviation? Ma'am, the difference between the angle of incidence and angle of diffraction. Yes. So when you are saying light, source से light is coming, light should enter the lights, it should enter straight. But because of this prism, it is not going straight. So source से light is going there, and then it is deviating in certain angle. So actually this path से आ रहा था, and जहाँ पे because of prism it is deviated by in other direction. So angle between those two light ray is known as your angle of deviation. Okay, and you know this relation, that is delta equals to mu minus 1 into alpha. ये भी इसमें हम यूज करेंगे आगे. So what is a prism? Prism से we are observing the angle of deviation, and this source from which actual light is coming, the emergent light will not appear to come from that. So when it is not appear to come from that, it is appear to come from another source which is located above or below the parent source. जो source है उसके ऊपर या कहीं पे और किसी source से आते हुए नजर आएगी, and जिस source से आते हुए नजर आएगी, that source is known as a virtual source. And the virtual source से जो light आते हुए नजर आएगी and जिस source से light exactly आ रही है, the difference between them is known as the angle of deviation. And I think all of you know this thing. Now let us just come to the topic of this
बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म में क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय दिस बाइप्रिज्म? Biprism, as the name suggests, biprism is a combination of two prisms. Actually, it is a combination of bi matlab two, prism matlab. So when you are saying this is a biprism, it is a combination of two prisms. But actually, ये कैसे बनता है? Biprism क्या है? It consists of two thin acute angle prisms joined base to base. Actually, it is constructed as a single prism of obtuse angle 179 degree. हम बच्चे सारे बच्चे आ गए? Okay. It consists of two thin acute angle prisms joined base to base. Now let us see. Again, you see this figure. So this is a prism. Prism को let us different. This is a prism, and यहाँ पे एक source है light S. Source is this is the source of any source of light. बच्चे blackboard is clear? बच्चे blackboard is visible to you? सबको दिख रहा है? हाँ बच्चे just Yes, ma'am. clear है? Okay. So this is a source of light, and light is deviating like along this direction. So this is the emergent ray. This is the incident ray. And यही light जो इधर आ रहा है, it will appear to come from this source S. And ये actually ये light source should go along this direction. Instead of that, this is going along this direction. So this angle is known as angle of deviation, or you can say this angle is known as the angle of deviation. Similarly, Blackboard is very blurred. yes, The visibility of blackboard is very blurred. is it not clear? Yes, ma'am, it's not clear. Okay. अभी मैंने थोड़ा सा कैमरा को डिस्कस किया है, कुछ दिखे बेटर है या नहीं? ऐसे दिख रहा है? ओके, हाँ बच्चे बोलो, इज इट विजिबल बेटर? यस मैम। बेटर? तो चलो हम फिगर में, मैं आपको पीपीटी में दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा चीज समझ लो। ओके, सपोज एक प्रिज्म को हमने यहाँ पे रखा, इसके नीचे सपोज वी आर प्लेसिंग अनदर बेस, दैट इज द बेस ऑफ द टू प्रिज्म। एक के बेस के नीचे वी आर प्लेसिंग अनदर प्रिज्म एंड दिस सोर्स। तो यहाँ पे एक प्रिज्म यहाँ पे था, so the light which is actually coming from this prism से जो light emerged हो गया, this light is, this is the incident ray and this is the emergent ray, and this emergent ray is appear to come from one source S1 located above this source. ठीक है? So this S1 is, आप देखो यहाँ पे मैंने S लिखा है, this is the parent source जो एक ही सोर्स था, इसके ऊपर और एक सोर्स जो S1 है, ये क्या है? This is a virtual source from which the light after emergent light will appear to come. So this source is a virtual source, it is creating. Now this is source the light is incident again on this prism. हमने यहाँ पे दो प्रिज्म कंसीडर किया है, दैट इज एक ऊपर है और एक प्रिज्म नीचे है। तो ये जो नीचे जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म से whatever light is coming, the light will appear to, ये light को emerge किया इस direction में सर, so actually it is coming from this source and going along this direction, यहाँ पे आके ये इधर direction चला जाए, but this ray will appear to come from another source S2 which is located below the source. तो इसे सोर्स लाइट आ रही थी, बट ये कहाँ से आती हुई नजर आई थी? दैट इज दिस लाइट रे इज appear to come from this source S2 which is located below the source S. Okay, in this way we can say S1 and S2 are two virtual sources created by the two prisms. तो दो प्रिज्म का जो कॉम्बिनेशन हमने लिया, ये दो वर्चुअल सोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्रिज्म एक सोर्स, दूसरा प्रिज्म अनदर सोर्स, एंड these two virtual sources will work as two coherent sources.
That is, what do you mean by coherent sources? Because when you are considering light coming from this source and when we are saying light coming from this source, they are allowed to interfere, then it is possible to see the interference pattern. Okay, when we are able to see the interference pattern, मतलब interference there, and we can say interference होने का prime condition क्या है? The two sources must be coherent. यहाँ पे S1 and S2 will work as two coherent sources because light coming from S1, light coming from S2 will interfere to produce the interference pattern. Okay, so S1 and S2 can work as two coherent sources. But actually जो हम biprism यहाँ पे डिस्कस करेंगे, that is the prism which is designed by Fresnel, that actually consists of two prisms. It actually consists of not consist of two prisms, but actually ये एक ही prism है, एक ही prism है जिसमें कैसे बनता है, यहाँ पे जो फिगर दिया है वो फिगर ऐसे ही बनता है. That is actually ये एक ऐसा बहुत फ्लैट सा prism है जिसका we are considering जिसमें एक एंगल है, इसका एक one angle is 179 degree and the two side angles are 1 degree by 2, मतलब this is 30 degree and this angle is 30. This is 30 minutes and this is also 30 minutes. So ये एक single glass plate से ये prism बना है. Actually जो Fresnel ने जो biprism design किया था, that will work as a combination of two prisms, but actually it is formed from a single glass plate. Actually a single glass plate is taken and it is grounded polished so that we can get one obtuse angle prism of 179 degree and the two side angles कितना हुआ, एक एंगल अगर 179 डिग्री हो गया, दोनों बाकी दोनों एंगल का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 1 minute. So that we are saying one is 30 minutes, the other is 30 minutes each. Okay, in this way the Fresnel designed the biprism and ये एक ही prism है but it can work as a combination of two prisms. Okay, so this is your design of your Fresnel's biprism. So जब इसमें क्या है, जब whenever we are saying light is incident on this biprism from the source, इस biprism के ऊपर the source S से light is incident, then what we are saying, so this is a, let us consider this is a point source of light, a narrow source of light. Okay, and light from the source is incident here on the prism, that is light incident मतलब this is interference का division of wavefront. This is a narrow source से जो भी light will come, that will come as a wavefront and that wavefront is allowed to incident on the biprism at different position, and this light which is incident on the upper part of the prism, they will सारे different direction में they will deviate. Okay, generally जो upper part में आ रहा है they are deviating along lower side and जो lower part में incident हो रहा है they will appear to deviate along upper side. Okay, so these rays will appear to come from this source S1 which is located above the source and this source S2 which is located below the source. ये S2 से आती हुई नजर आ रही है and ये S1 से आती हुई नजर आ रही है. Okay, in this way we are saying that this Fresnel's biprism is able to produce two coherent sources. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, source से whatever light is coming from the source that is allowed to fall on the prism and जो भी ऊपर part में incident हुआ वो सारे light को whatever incident on the upper part, that is the upper वाले prism से part of the prism में जो भी incident हुआ they will appear to come from the source S1. ये डाइवर्ट होके इधर गए but all of them will appear to come from this source S1. Similarly whatever incident on this lower half they will appear to come from this source. Actually S से ही आ रही but ये appear करेगा कि S2 से as if they are coming from S2.
ये भी all these rays are coming from S, but they will appear to come from this source S1. So these are that's why S1 and S2 are the two virtual sources, and they are also virtual coherent sources as they are producing interference. Whenever they are allowed to interfere, then it is possible to see the interference pattern. Okay, so we are saying that you can produce two virtual coherent sources. यही फिगर को जो मैंने ड्रॉ किया आप इसमें देख सकते हो, वही फिगर यहाँ पे है, एंड ये फिगर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर. ओके, ये फिगर कभी कभी खाली ड्रॉ करने के लिए 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाता है. सो यू ट्राई टू ड्रॉ दिस. खाली इसमें एरो सब में देंगे आपको लाइन का सारे रे का जो एरो मार्क आपको देना पड़ेगा. ओके, चलो हाँ बच्चे बोलो, समझ में आया बाइप्रिज्म का फंक्शन? इंटरेक्ट करो. ओके, हाँ धृति समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है बच्चे, ये नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो. यस मैम. आ रहा है? बाकी सबको नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस मैम आ रहा है. मैम आ रहा है, आ रहा हाँ है. तो बोलो, बीच में बोलो, मैंने पता कैसे चलेगी आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके मैम. This is basically an optical bench experiment, and this is an optical bench on which यहाँ पे देखो एक source of light is there, sodium lamp. Generally the source यहाँ पे you are using, that is sodium light you are using, yellow color, that is we are considering that to be monochromatic source of light, and that light is allowed through a slit placed here. इसके सामने जो slit है उसके अंदर ये propagate करेगा. This is a narrow slit, and that is allowed to fall on the biprism. And now इसको देखने के लिए whatever you will use, that is known as an eyepiece. ठीक है, to observe the interference pattern. यहाँ पे जैसे हमने एक स्क्रीन प्लेस किया है AB, इंटरफ्रेंस पैटर्न प्लेस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दैट इज अ स्क्रीन. जो भी स्क्रीन यहाँ पे यूज किया है, द स्क्रीन इज योर AB इज अ स्क्रीन वी आर यूजिंग. एंड यहाँ पे स्क्रीन क्या है, यहाँ पे तो हमने AB दिखा दिया, बट एक्चुअली व्हाटएवर यू आर यूजिंग हियर दैट इज अ eyepiece. eyepiece क्या है? So what is an eyepiece? Eyepiece is the part of the optical instrument that we are using here in our near to the eye. So optical instrument like microscope, telescope, all these are optical instrument. And किसी भी optical instrument में एक ऐसा ट्यूब होता है जहाँ पे, क्योंकि optical instrument मतलब हम आंखों से इसको देखते हैं, very sharply or observing. We are observing by our eye. हम अपने आंखों को यहाँ पे रखते हैं, एंड दिस पार्ट को उसका जो छोटा सा पार्ट होता है, ट्यूब होता है, जिसको पकड़ के हम देखते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज एन आईपीस. तो यहाँ पे वी आर यूजिंग दिस आईपीस टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड इस आईपीस में क्या होता है, एक वर्टिकल क्रॉस होता है. इसमें इसके सामने एक हेयर थिन वायर का जो क्रॉस होता है, जिसको कहा जाता है, दोज आर नोन एज द क्रॉस वायर. क्रॉस वायर मैंने पहले ही बताया था, पुराने बच्चों को याद है, बाकी नए बच्चे भी आई थिंक पढ़ के आए हो, तो यू नो व्हाट आर क्रॉस वायर. बोलो हाँ, शिव कुमार बोलो, प्रेजेंट हो शिव कुमार? क्या पूछा आपने? हाँ शिव है ना? हाँ बोलो शिव, आईपीस क्या है, क्रॉसवायर क्या है, यू नो दैट थिंग? क्या होता है क्रॉसवायर? व्हाट डू मीन बाय आईपीस हियर? हाँ राजीव गर्ग बोलो. मैम हम जब आईपीएस से देखते हैं तो मैम जो उसको क्रॉसर जहाँ पे हमारा ब्राइट बैंड बन रहा होता है मैम, एक्चुअल वहाँ टिक जाता है उसका जो क्रॉसर होता है. हाँ, क्रॉसवायर इज अ रेफरेंस मार्क जिसको मूव यस मैम, रेफरेंस मार्क. हम उसको पोजीशन करते हैं. Yes, जहाँ पे ma'am. हमें देखना है, वी कैन पोजीशन दैट थिंग. हाँ सोबिया क्लियर है? सुनाई दे रहा है सोबिया? एंड यस कार्तिक गुप्ता ए एंड बी. ओके, एक ए पुराने जो है वो ए है, दूसरा जो है बी है. दोनों को समझ में आया? यस योगेश गुप्ता समझ में आ रहा है कुछ? अरे अनम्यूट एंड टेल मी.
ओके, जिसको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. सो दिस इज एन आईपीस. वी आर यूजिंग आईपीस टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है. सो यहाँ पे वी आर मार्क यस कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड बाइप्रिज्म. इसका हम मार्क करेंगे एज ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 को वी मार्क कर D, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन को हम क्या मार्क करते हैं? कैपिटल D. So this is your capital D, this is your small d, and this distance is A and this distance is your B. So that we are saying D equals to A plus B. That is, what is D? Capital D is the, as you know, capital D is standard notation here. That is distance between the source and the screen. And in between क्या आ गया? Biprism. So इसको हमने A में divide कर दिया. Source से biprism का distance is A, and this is biprism से eyepiece का distance is B. So that we are right saying D equals to A plus B we are using. Okay. So these are common notations. Now अभी बताओ ये YDS में और इसमें कोई डिफरेंस है फॉर्मूला में? क्योंकि हम यहाँ पे वही चीज निकालेंगे, कैलकुलेट दैट एक्सप्रेशन फॉर योर फ्रिंज विड्थ. तो इसमें कोई डिफरेंस है या सेम फॉर्मूला आएगा? बोलो. हाँ बच्चे बोलो. YDS में जो हमने फ्रिंज विड्थ निकाला था, फ्रिंज विड्थ पर बीटा, बीटा इक्वल्स टू कितना लिखते हैं? लैम्डा d by d. सही लिखा या गलत लिखा? बीटा इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ. दिस इज फ्रिंज विड्थ. बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही चीज होगा या कोई अलग चीज होगा? बोलो. सेम ही होगा. सेम होगा क्योंकि यहाँ पे एक सोर्स से S1 अनदर सोर्स Yes, से ma'am. S2. यहाँ पे एक स्क्रीन है. एट एनी पॉइंट यू हैव टू फाइंड दैट. थोड़ा सा ऊपर लिख लो. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके. यहाँ पे एक सोर्स से S1, यहाँ पे सोर्स से S2. जैसे YDS में लेते थे, यहाँ पे दिस पॉइंट इज P and this point is also, this distance is S1 to P, S2 पे पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, तो we can say बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d. एंड आप सबको पता है, कल आपने पढ़ा है, that is distance between two consecutive bright fringes equals to distance between two consecutive dark fringes, that equals to fringe width beta. And we are saying we are writing beta equals to lambda d upon d. ठीक है? सही है? ओके. सो यहाँ पे we'll discuss an experiment. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज नोट डाउन दैट थिंग. हाँ, सबके पास कॉपी पेन है? द नोट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय यूजिंग फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. ओके. तो अभी हमने क्या लिखा? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d, एंड दिस इज बीटा इक्वल्स लैम्डा d अपॉन d. तो लैम्डा कितना होगा? सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा? बोलो. लैम्डा क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू, यू कैन राइट लैम्डा इक्वल्स टू बीटा d अपॉन कैपिटल D. ओके. सो टू डिटरमाइन लैम्डा वी हैव टू डिटरमाइन बीटा, d एंड d. अगर हमें बीटा मिल गई, d मिल गई, कैपिटल D, तो यहाँ पे ऑप्टिकल पेन से डायरेक्टली लिख लेंगे दिस डिस्टेंस, दिस इज द स्लिट एंड दिस इज द आईपीस. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर कैपिटल D. ओके. एंड दिस इज बाइप्रिज्म से इसका डिस्टेंस दैट इज A. अब D डायरेक्टली हम कैपिटल D इधर से निकाल सकते हैं. नाउ हाउ विल कैलकुलेट दिस बीटा? बीटा कैसे निकालेंगे? कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि ये मैंने पहले ही पढ़ाया था. आप बोलो. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बीटा? अरे बोलो. बीटा कैसे निकलेगी? फ्रिंज विड्थ कैसे निकलती है इन दिस एक्सपेरिमेंट? यस, बोलो. मैम किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स के बीच में गैप निकाल लेंगे. ऐसे ऐसे किया था बाइप्रिज्म में. यस. आस्था बोलो. आर्यन, आस्था बोलो कैसे निकल बीटा निकलेगी? हाँ. x
n माइनस एक्स नॉ 0 अपॉन n, मतलब जो भी ऑर्डर nth ऑर्डर जो भी नंबर है हमारी फ्रिंज की, उसको माइनस करके और विड्थ निकाल के और फिर उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बोलो और कोई बोलो, इसने कुछ बोला, सबको समझ में कुछ आया? हाँ, आर्यन सिंह बोलो, आस्था ने कुछ बोला, आपको समझ में आया? यस, अनुष्का समझ में आया कुछ? Yes, ma'am. आया? यस, मनीष समझ में आया कुछ? ये आता था पहले? मनीष, तो जिसका नाम लूंगी वो अगर एब्सेंट है, अगर रेस्पॉन्ड नहीं किया, देन आई विल मार्क दैट पर्सन एज एब्सेंट। ओके, ओके, चलो, किसी को, सबको, आई थिंक सबको फिर आता नहीं, अभी फिर से इस चीज को समझ लो, वरना तो आप सब बोलते हैं हाँ ये समझ में आता आया है, कैसे होता है। और देखो, हाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग, हाउ यू कैन फाइंड द फ्रिंज विड्थ। नाउ इन द फील्ड ऑफ व्यू द आई पीस हमें क्या नजर आएगी? वी कैन ऑब्जर्व एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। लेट अस कंसीडर ओनली ब्राइट फ्रिंजेस। Suppose we are observing all the bright fringes, dark in between. So हम खाली count करेंगे only bright fringes. Let us fix as we are moving, and इस eyepiece को क्या कहा जाता है? This eyepiece is known as, इसके ऊपर एक screw है, and इस eyepiece का नाम क्या है? That is micrometer eyepiece. This eyepiece is known as micrometer eyepiece. Why it is said to be micrometer? Because एक micrometer scale like your screw gauge parameter is attached here. इसके ऊपर एक छोटा सा स्केल है, एंड इस स्केल का काम क्या है? तो मूव द क्रॉस है, सो दैट हम पोजीशन इसका जहां पे चाहे वहीं पे कर सकते हैं। तो लेट अस फिक्स द क्रॉस वायर। जैसे हम इसके ऊपर के स्क्रू को ऐसे ऐसे मूव करेंगे, देन लेट अस से दैट दिस आईपीस का जो क्रॉस वायर है, दिस इज अ रेफरेंस मान दैट इज कमिंग ऑन ए पर्टिकुलर फ्रिंज। पर्टिकुलर फ्रिंज, इसका नंबर क्या है हमें पता नहीं, लेट अस नेम इट एज दिस इज द nth ब्राइट फ्रिंज। कहां पे आ गया? ये cross wire is now focused on the nth bright fringe, and at this position whatever the scale rate shown by the micrometer, ये जो भी रीडिंग दिखाया इस स्केल में whatever रीडिंग हमने इसको नोट कर लिया, एंड उसको हम क्या लिखेंगे? so let us note the रीडिंग। क्या लिखा हमने इसको? सपोज nth फ्रिंज का जो पोजीशन है, रीडिंग क्या लिखा हमने? let that reading is your x लिख दिया। ओके, नाउ we'll move the cross wire। जैसे हम इसको मूव करेंगे ऊपर से इसको जैसे जैसे उसका जो ऊपर का माइक्रोमीटर स्क्रू को मूव करेंगे, देन ये क्रॉस क्या है? ग्रेजुअली शिफ्ट किया आगे जाएगा। तो ये जहां पे था n से n में था, अभी लिखोगे n+1 पे गया, फिर n+2 पे गया, n+3, n+4, n+5, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे काउंट करते करते आप लेंगे। सपोज इट इज शिफ्टिंग टू n+m फ्रिंज, जो नंबर है सपोज n का वैल्यू 5, n में था, अब ये कहां चला गया? n+m फ्रिंज के ऊपर चला गया। सो यहाँ पे कितना रीडिंग आया? नाउ स्केल को मूव किया तो उसका पोजीशन शिफ्ट हो गया, एट दैट पोजीशन नोट द रीडिंग इज इक्वल्स टू y। सो कितना कहां पे था? सो इनिशियल पोजीशन था x, फाइनल था y। तो हम लिखेंगे y माइनस x अपॉन m, जितना फ्रिंज शिफ्ट किया, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंज विड्थ बीटा। लिख सकते हैं? हम क्या करेंगे? एक एक छोटा छोटा इंस्टेड ऑफ टेकिंग, क्योंकि जिसके बीच में स्पेसिंग जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकली हमें माइक्रोमीटर स्केल से मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लेकर उनका मीन भी निकाल सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करेंगे? एक ये पोजीशन में ले लिया एंड थोड़ा सा चेंज करके और दूर में और एक पोजीशन ले लिया। सपोज इसके बीच में 10 फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन 10 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस इज दिस। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस? ओके, अगर 10 7 फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस हमें पता चल गया, देन आप दो के बीच में कितना डिस्टेंस है वी कैन आल्सो कैलकुलेट दैट। तो y माइनस x अपॉन m, दैट उसको हम निकाल सकते हैं बाय फ्रिंज विड्थ बीटा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ बीटा वी कैन फाइंड लाइक दिस। ओके, तो हमें क्या है? लैम्डा। टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें क्या चाहिए? बीटा चाहिए।
कैपिटल डी से स्मॉल डी से। तो डी तो हमें मिल गया स्केल से, बीटा हम माइक्रोमीटर आईपीस की मूवमेंट से निकाल सकते हैं ना। हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी? स्मॉल डी कैसे निकालेंगे बोलो? हाँ बच्चे बोलो फटाफट। Yes, can anyone send me the screenshot of the attendance? Harshit, are you present? Harshit, are you present? Harshit Gupta? Yeah, any other one? Send me the screenshot. Okay, ma'am. Okay, Attendance ma'am. की? Okay, okay. हाँ बच्चे, ये बीटा निकालना समझ में आया? अभी बता स्मॉल डी कैसे निकालते हैं? How you can find small d? बोलो स्मॉल डी कैसे निकाल सकते हैं? मैम डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था मैडम ने। हाँ, दो मेथड है, एक डेविएशन मेथड है और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है दोनों में बोलो? ये तो सबने पढ़ा है। हाँ, मैम डिस्प्लेसमेंट में हम जो हमारा आईपीस है ना मैम, उसको बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे हाँ, तो मैम हमारी लेटरल मैग्निफिकेशन निकल जाएगी। यस, तो हम इसमें लेंस पुट करेंगे, दो पोजीशन में लेंस में उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, देन उससे हमारी आ जाएगी स्मॉल डी का वैल्यू, है ना? ओके, बाकी और एक है डेविएशन मेथड, दैट इज मैथमेटिकली। सो विल डिस्कस दोस थिंग्स। अभी तक बताओ, बहुत सारे नए बच्चे भी आए थे, आपको को समझ में ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो? Yes, ma'am. क्या किसी को कोई डिफिकल्टी है बोलो? जिसको कोई डिफिकल्टी है, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन टेल मी। ओके, बोलो, मतलब सबको आ रहा है? जैसे आप क्वेश्चन कुछ नहीं पुट कर रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब आपको समझ में आ रहा है? आंसर नहीं दे रहे मतलब समझ में नहीं आ रहा है? क्या मैं अज्यूम क्या करूं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ सोबिया, आर यू देयर? सोबिया, क्या हो गया मैम? सोबिया इज देयर? नहीं, नहीं, वो तो है पर पता नहीं, शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। डिस्कनेक्ट हो गई मैसेज किया है, शी इज डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट हो गई, दिखा तो रहा है मैसेज आया है। सोबिया तो है, दिखा रहा है। ओके, चलो, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड डेविएशन मेथड, दोनों मेथड विल डिस्कस टुमारो। ओके, तो थोड़ा सा ये टॉपिक है, फटाफट इसको आप सब पढ़े हो, आप आके फटाफट बताना, कल की क्लास में फटाफट बताओगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। बताओ डेविएशन मेथड बोलो, ये तो फटाफट हो जाएगा। व्हाट इज डेविएशन मेथड? डेविएशन मेथड में हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं, उसी से आ जाते हैं फटाफट। डेल्टा इक्वल्स टू म्यू इंटू क्या था, अल्फा इंटू म्यू माइनस 1 या म्यू इंटू अल्फा माइनस 1। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी लिखा था। ओके, इसमें क्या है, डी स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द आईपीस, एंड हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, दैट इज फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, एंड सो द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस कितना आ गया, पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस जैसे ईवाईडीएस में क्या था, इन द सेम फॉर्म वी कैन कैलकुलेट, दैट इज दिस इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी। सो फ्रिंज विड्थ क्या है, उससे हम फ्रिंज विड्थ से यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग। नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू sources, small d will find. So यहाँ पे this is the displacement method. Displacement method में लेंस पुट करेंगे, एंड दिस इज अ डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला बच्चों को सबको आता है, एंड इस फॉर्मूले में हम खाली tan डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे इन दिस फिगर, तो हमारी tan डेल्टा का वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो tan डेल्टा ये कर लिया, अभी छोटा सा ही है, so we'll do this thing। ऐसे लेट हुआ था क्लास में, ज्यादा नहीं हो पाया। बोलो फटाफट क्या करें डेविएशन मेथड में, जो लिखा है वही चीज मुझे बोलो, मैं आपसे सुन के लिखूंगी।
So this is S1, this is S2. इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? Small d. S is the center point. So this distance will be equals to d by 2, and this distance will be equals to d by 2. And यहाँ पे we'll consider whatever light is incident there, they will appear to come from this source. S से जो light आ रही थी, that will appear to come from this source. पर actually ये S से आ रही थी and यहाँ से आती हुई नजर आएगी. So this is your angle of derivation delta, and this is your d by 2. And ये distance को हमने क्या कितना consider किया है? The distance is considered to be a. हमने ये distance को a लिया है. So in this triangle, what is the value of tan delta? Tan delta is equals to, tan delta कितना होगा? This by this, that is b upon d by 2 upon a. ये क्या लिख रहे हो समझ में आ रहा है? Tan delta equals to d by 2 upon a. Or you can write tan delta equals to, since delta is very very small, so tan delta equals to delta. So we can write delta equals to d upon 2a. Or we can write d equals to delta into 2a. delta का वैल्यू कितना है? delta equals to कितना है? बोलो, अरे बोलो delta कितना है? लिखा दिया पीपीटी में, mu minus 1 into alpha, and इसमें हमने 2a multiply कर दिया. So this is the value of d, and this formula is used in numerical calculation में this formula is used. d equals to 2a into mu minus 1 into alpha. Okay, so this is by deviation method. Now displacement method we will discuss tomorrow. उसमें लेंस प्लेस करेंगे and उसको आगे पीछे करेंगे, so that in the next class we can start with the, ये हो जाए then we will discuss biprprism का numerical से नहीं किया, we will discuss certain numerical and then आगे. Okay, okay, और बाकी किसी को क्या क्या है डिफिकल्टी? आप लोग मुझे पर्सनली पूछते हो, बट आपको क्या डिफिकल्टी बताओ, इसको क्या प्रॉब्लम है? बुक्स के लिए मैंने बोल दिया था आपको, इसके बाद ही आएगी आपका लाइब्रेरी कार्ड इशू होने के लिए आपका रोल नंबर आना पड़ेगा. आफ्टर गेटिंग रोल नंबर प्रोबेबली आपका सेक्शन में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता मुझे पता नहीं. आफ्टर गेटिंग रोल नंबर प्रोबेबली सम चेंजेस मे हैपन, आई डोंट नो. ओके, सो आफ्टर दैट आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगी, यू कैन गेट योर बुक्स. बुक्स तो मिल जाएगी, बुक्स पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी. एंड अनदर थिंग, लास्ट क्लास हमने लैब में प्रैक्टिकल किया था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, हमारी रीडिंग आ गई थी, उसके बाद हमारी कनेक्शन हो पाया था. आप सबने कैलकुलेशन किया था कुछ? बोलो, कैलकुलेशन किसी ने किया था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का? अरे बोलो, कैलकुलेशन किया नहीं किया? बताओ, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें या नहीं करें नेक्स्ट क्लास? Ma'am, can you please share this PPT? Yes. Can you please share this PPT? Okay, in your class, personally you Yes, need this ma'am. PPT. Okay. No, Okay, ma'am, in the group. In the WhatsApp group. In the WhatsApp group. Okay, I'll do that thing. ठीक है? PPT and notes में दे दूंगी, पहले notes पढ़ लो, उसका PPT पढ़ना. PPT में क्यों बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें बहुत है. Okay, I'll share the notes and then we'll discuss some questions भी जो मैंने आधा कराया था, बाकी आधा क्वेश्चन भी हम करेंगे. Okay, चलो, now I'm ending the meeting. चलो बच्चे, now you can leave. नेक्स्ट क्लास के लिए आपका